Hello friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi GS Center. And let's begin with our lesson, that is health and diseases. This chapter is of 8th standard and its subject is the science. Health and diseases means swasthya or rog. So this chapter consists of the 3 parts and we have already completed our first one part. And now we shall begin with our second one part also. So in the first part, we have seen about the second one point, that is the some important diseases of the present days. In it we have learned about the dengue, swine flu, but our one more was remaining topic, that is the AIDS. So now we will continue from the AIDS. The full form of AIDS is the acquired immunodeficiency syndrome. तो AIDS का full form है acquired immunodeficiency syndrome. This disease is caused by HIV, human immunodeficiency virus. It is its full form. And in this diseases, the victim suffers from various diseases due to the progressive weakening of the natural immunity, and the diagnosis of the AIDS cannot be confirmed without the tests in the medical laboratories. The ELISA test is used for its proper diagnosis. The full form of ELISA is enzyme linked immunosorbent assay, and the symptoms of AIDS are the person specific. तो एड्स ये जो रोग होता है ये HIV रोग के द्वारा मतलब HIV के द्वारा होता है, और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और इस रोग में जो पीड़ित होता है वो कई सारे बीमारियों से गुजरता है क्योंकि प्रगतिशील कमज़ोर हो जाती है प्राकृतिक प्रतिरक्षा की। और जो रोग निदान होता है एड्स का, हम उसे मतलब पक्का नहीं कर सकते बिना चिकित्सीय द्रव्य प्रयोगशाला में टेस्ट किए बिना। और ELISA टेस्ट जो होता है ये इसे उसके उचित रोग निदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो मतलब जो सिम्टम्स होते हैं यानी जो रोग लक्षण होते हैं एड्स के, ये लोग विशेष होते हैं। फर्स्ट वन इज द एड्स डज नॉट ऑकर्स ड्यू टू टचिंग और शेयरिंग ऑफ द फूड मटेरियल्स विद द HIV इन्फेक्टेड पर्सन और बाय नर्सिंग HIV पेशेंट। सेकेंड वन, आवर बिहेवियर विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल। तो सबसे पहला एड्स ये जो रोग होता है ये HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना बांटने से या HIV संक्रमित व्यक्ति को छूने से ये रोग एड्स रोग नहीं होता है। और HIV जो संक्रमित मरीज है उसे परिचर्या करते वक्त भी एड्स ये रोग नहीं होता है। सेकेंड वन, और हमारा जो व्यवहार होना चाहिए HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ ये नॉर्मल होना चाहिए। HIV was first reported in the African species of the monkeys. According to the National AIDS Control Program and UNAIDS, 80 to 85% HIV infections in India occurs through the unsafe sexual contacts. तो HIV ये जो HIV है मीन्स इट्स फुल फॉर्म इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो HIV इससे पहले कहाँ बताया गया था? अफ्रीकन जाति जनजाति होती है बंदरों की, उधर बताया गया था। और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और UNAIDS के अनुसार 80 to 85% HIV संक्रमण जो होते हैं भारत में ये असुरक्षित यौन संपर्क की वजह से होते हैं। सो आवर सेकेंड वन पॉइंट, दैट इज सम इम्पोर्टेंट डिजीजेस ऑफ द present days. It is fully get completed our topic AIDS. It is get completed. So now we will see some of the question answer. The first one question is which measures are taken at our home to control the rats? तो जो चूहे होते हैं उसे नियंत्रण करने के लिए हमारे घर में कौन से तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट वन, we should keep our house neat and clean. Second one, we should use the rat kills and the mouse traps. Third one, we should repair and fill the holes for which the mouse uses for its movement. तो सबसे पहला हमको हमारे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरा, हमको रैट किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और चूहे के जो पिंजरे होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा, जो माउस होते हैं यानी जो चूहे होते हैं वो आने जाने के लिए या अपने हलचल के लिए जिस छेद का इस्तेमाल करते हैं हमको उस छेद की मरम्मत करनी चाहिए या उस छेद को भरना चाहिए। Then second one question is why it is necessary to take care of the health of the domestic dog, cat and bird. तो घरेलू कुत्ते, बिल्ली और पक्षी के जो स्वास्थ्य है उनके स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना ये ज़रूरी क्यों है? सो इट्स आंसर इज इट इज़ मैंडेटरी टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द डोमेस्टिक डॉग, कैट एंड द बर्ड्स बिकॉज दे आर वाइल्ड एनिमल्स टेम्ड बाय द ह्यूमन्स टू बी एज देयर बेस्ट फ्रेंड। तो जो घरेलू कुत्ते, बिल्ली और पक्षी, इनके जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर ध्यान देना ये बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इनको मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड वन क्वेश्चन इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द पिजन्स, स्ट्रे एनिमल्स एंड द ह्यूमन हेल्थ? तो कबूतर, स्ट्रे एनिमल्स यानी आवारा जानवर और इंसानों के स्वास्थ्य के बीच में कोई मतलब रिलेशन है, कोई संबंध है? सो इट्स आंसर इज द पिजन्स एंड द स्ट्रे एनिमल्स आर द मेजर हजार्ड ऑन द ह्यूमन हेल्थ। सिमिलरली द स्ट्रे एनिमल्स कैरी आउट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू देयर बाइट। तो कबूतर और आवारा जानवर जो होते हैं, इनका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव होता है। और वैसे ही जो स्ट्रे एनिमल्स यानी आवारा जानवर जो होते हैं, ये अगर हमको काट लेते हैं तो इसके द्वारा हमको संक्रमण भी हो सकता है। Then fourth one question is what are the effects of the rats, cockroaches on the human health? तो इंसानों के स्वास्थ्य के ऊपर चूहे और कॉकरोचेस का क्या प्रभाव होता है? So here first one we will see about the rats. They can transmit the diseases if they bite or scratch the humans or by leaving their urine around the home, and we can get the sick if they contaminate our food. तो रैट्स यानी जो चूहे होते हैं वो रोग को संचालित कर सकते हैं अगर वो हमको काट लेते हैं, हमको खरोच पहुंचाते हैं, या हमारे घर में उनकी जो यूरिन होती है वो फैल जाती है। और अगर जो चूहे होते हैं ये हमारे खाने को संदूषित कर लेते हैं तो इसके कारण हम बीमार भी हो सकते हैं। सेकेंड वन वी विल से अबाउट द कॉकरोच। द कॉकरोच कैन स्प्रेड द डिजीजेस लाइक द डायबिटीज, डायरिया, कोलेरा, लेप्रोसी, प्लेग, typhoid, fever and the viral diseases such as the poliomyelitis. So this was altogether our 4 questions that we have seen, and now we will see about our third one point, that is infections through animals. So now we will see our third one point, that is infections through animals यानी जानवरों द्वारा संक्रमण। In it we will see about the rabies। तो इसमें हम rabies के बारे में देखेंगे। This is the viral disease. It occurs due to the bite of the infected dog, cat, monkey, rabbit, etc. And the viruses enters to the brain via neurons. Hydrophobia is one of the important symptoms of this diseases। तो rabies जो होता है, ये जो रोग होता है, ये एक विषाणु रोग होता है। और ये रोग हमें कैसे होता है कि अगर कोई संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, बंदर या रैबिट हमको काट लेता है तो इसके द्वारा रैबिस ये रोग होता है। और जो वायरसेस होते हैं ये मस्तिष्क न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे अंदर आ जाते हैं। और हाइड्रोफोबिया जो होता है ये एकमात्र महत्वपूर्ण लक्षण होता है इस रोग का। एंड इन दिस डिजीजेस एंड इन सच केसेस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर एंड द रैबिस इज द फैटल डिजीज। हाउएवर फैटेलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, एंड द सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन द 90 to 175 डेज ऑफ द डॉग बाइट। तो ऐसे मामलों में जो पीड़ित होता है वो बहुत ज़्यादा डर दिखाता है पानी के लिए। और रैबिस जो होता है ये बहुत ही जानलेवा रोग होता है, लेकिन हम अपमृत्यु को रोक सकते हैं अगर हम मतलब जो लक्षण होते हैं उसके शुरू होने से पहले ही अगर हम टीकाकरण कर दें तो। और जो रोग लक्षण होते हैं रैबिस के और जो रोग लक्षण होते हैं डॉग बाइट के, ये 90 to 175 दिन के अंदर ही होने लगते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द रैबिस। तो अभी हम रैबिस के रोग लक्षण देखेंगे। फर्स्ट वन इज द फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स, सेकेंड वन इज द एग्जैजरेशंस इन द बिहेवियर, एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोफोबिया। तो सबसे पहला है 2 से 12 हफ्तों तक बुखार होना, दूसरा वाला है व्यवहार में अतिशयोक्ति होना, और तीसरा वाला है हाइड्रोफोबिया। Now we will see one of the question, but the third one point, that is the infections through animals, it is get completed. Now we will see one question, that is why the animal cages and their living places should not be near our kitchen। तो जानवरों के जो केजेस यानी जो पिंजरे होते हैं और उनके रहने वाले जो जगह होते हैं वो हमारे किचन के पास क्यों नहीं होने चाहिए? So the animal cages and bird cages should not be near our kitchens because they contains the too much types of the
allergens, pathogens and the harmful bacteria. Also, the smoke and oil from the kitchen and the sounds of the kitchen utensils can cause their lifestyle hit by disturbance. तो जो जानवरों के जो केजेस यानी पिंजरे होते हैं और उनकी जो रहने वाली जगह होती है, ये हमारे किचन के पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनमें कई सारे प्रकार के एलर्जीज शामिल होती है, उनमें कई सारे प्रकार के रोगजनक होते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा प्रकार के जानलेवा बैक्टीरिया भी होते हैं। और जो स्मोक यानी जो धुआं होता है और जो ऑयल होता है किचन में से और जो किचन की सामग्री की जो मतलब आवाज़ होती है, इसके कारण उनके जीवन शैली में बहुत ही ज़्यादा तनाव हो जाता है। सो नाउ वी विल सी अबाउट आवर फोर्थ वन पॉइंट, दैट इज द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. So now we will see about our fourth one point, that is non-infectious diseases यानी गैर संक्रामक रोग. So the diseases which occurs through the infections and body contacts is called as the non-infectious diseases and such diseases arise in the human body itself. तो ऐसे रोग जो मतलब बिना संक्रमण या बिना शरीर के संपर्क के द्वारा होते हैं, तो ऐसे रोगों को कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी गैर संक्रामक रोग. और ऐसे रोग जो होते हैं वो इंसानों के शरीर में अपने आप हो जाते हैं. फर्स्ट वन वी विल सी अबाउट द कैंसर. तो सबसे पहला हम देखेंगे कैंसर. अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज द कैंसर. द ग्रुप एंड द लंप ऑफ द कैंसरियस सेल्स इज कॉल्ड एज द malignant tumor, and the cancer can occur in the various body parts like the lungs, stomach, mouth, tongue, breast, uterus, skin and the tissues like blood. तो अनियंत्रित और असामान्य कोशिकाएं के विकास को कहा जाता है कैंसर. और ग्रुप और जो कैंसर कोशिकाएं की जो गांठें होती है उसे कहा जाता है मालिग्नेंट ट्यूमर यानी घातक ट्यूमर. और कैंसर जो होता है वो हमारे शरीर के कई सारे अंगों में होता है, जैसे कि फेफड़ों में, पेट में, मुंह में, जीभ में, स्तन में और यूटरस में और स्किन में यानी त्वचा पर भी होता है और टिश्यूज जैसे ब्लड में भी होता है. नाउ वी विल सी अबाउट द रीजंस ऑफ द कैंसर. तो कैंसर के कारण कैसे हो सकते हैं अभी हम वो देखेंगे. द कंजम्पशन ऑफ द टोबैको, गुटखा, अल्कोहलिज्म एंड द स्मोकिंग एक्सेट्रा and the lack of fiber content in the fruits and the leafy vegetables in the food. Excessive consumption of the junk food like the pizza, burgers etc. are some as many possible reasons. Heredity में also भी reason. तो जो कैंसर होता है उसके कारण कैसे हो सकते हैं कि अगर हम तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं तो इसके द्वारा कैंसर हो सकता है. हमारे फलों में या जो हरी सब्जियां होती है उसमें अगर फाइबर सामग्री की कमी होती है तो इसके द्वारा भी कैंसर हो सकता है. और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर्स, तो इसके द्वारा भी कैंसर हो सकता है. और ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं कैंसर होने के. और हेरिडिटी यानी वंशागति ये भी कारण हो सकती है. सो नाउ वी विल सी अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द कैंसर. तो अभी हम कैंसर के रोग लक्षण देखेंगे. फर्स्ट वन इज द क्रोनिक कफ, होर्स वॉइस एंड डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग. तो सबसे पहला है क्रोनिक कफ यानी जीर्ण खांसी, होर्स वॉइस यानी कर्कश आवाज़ और निगलने में कठिनाई. सेकेंड वन इज द इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लेमेशन यानी लाइलाज निशान और सूजन. थर्ड वन इज द लम्प्स ऑन द ब्रेस्ट यानी स्तन पर गांठें. फोर्थ वन इज द अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यानी अस्पष्टीकृत वजन घटना. सो द सिम्टम्स ऑफ द कैंसर इज ऑल्सो गेट completed. The control diet helps to prevent some many types of the cancers, and the physical exercise along with the modern treatment is more beneficial to cure the cancer, and we should avoid the addictions like chewing tobacco and smoking. तो जो नियंत्रित भोजन होता है ये हमको मदद करता है कई सारे कैंसर को रोकने के लिए. और अभी के आधुनिक ट्रीटमेंट यानी आधुनिक उपचार के साथ शारीरिक व्यायाम ये बहुत ही ज़रूरी है कैंसर के जो इलाज है उसे करने के लिए. और हमको व्यसनों को टालते रहना चाहिए, जैसे कि तंबाकू चबाना और स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना.
So now we will see one topic that is modern diagnostics and the treatment of the cancer, यानी आधुनिक रोग निदान और कैंसर का उपचार. Various techniques like the CT scan. The full form of CT scan is the computerized tomography. CT scan images provide more detailed information than the plain X-rays do. तो कई सारे तकनीक जैसे कि CT scan. CT scan का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी. तो CT scan के जो फोटो होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, ये हमको बहुत ज़्यादा गहरी जानकारियाँ देता है जितना प्लेन एक्सरेज देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा. द नेक्स्ट वन MRI scan. The full form of MRI scan is the magnetic resonance imaging. MRI is a type of scan which uses strong magnetic fields and the radio waves to produce the detailed images of the inside of the body. An MRI scanner is a large tube which consists the powerful magnets and will lie inside the tube during the scan. तो MRI स्कैन का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग. MRI ये एक प्रकार का स्कैन होता है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र शामिल होते हैं और रेडियो तरंगें शामिल होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर के जो फोटोज़ होते हैं, इमेजेस होते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं. और MRI स्कैनर जो होता है उसमें कई सारे शक्तिशाली चुंबक स्थित होते हैं और हम उस ट्यूब के अंदर लेटते हैं स्कैन के दौरान. एंड द मैमोग्राफी. A mammography is a technique of using the X-rays and to diagnose and to locate the tumors of the breast. तो मैमोग्राफी ये एक एक्सरेज इस्तेमाल करने की तकनीक होती है रोग निदान करने के लिए. Then next one is the biopsy is used for the diagnosis of the cancer. तो बायोप्सी का इस्तेमाल कैंसर के रोग निदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है. The biopsy is the procedure to remove a piece of tissue or the sample of the cell from our body that can be analyzed into the laboratories. तो बायोप्सी जो होता है ये एक कार्य प्रणाली होती है जो कि हमारे जो मतलब टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू के टुकड़े को निकालते हैं, ये हमारे सेल के यानी कोशिका के सैंपल को निकाल देते हैं हमारे शरीर में से, जिसे कि मनोविश्लेषित किया जाता है लैबोरेटरीज में यानी द्रव्य प्रयोगशाला में. तो कई सारे तकनीक जैसे कि CT स्कैन, MRI स्कैन, मैमोग्राफी एंड बायोप्सी इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर. And in the cases of the treatment, along with the conventional methods like the chemotherapy, radiation therapy, surgery, and the modern techniques like the robotic and the laparoscopic surgery are also followed. तो जो ट्रीटमेंट के केसेस में, ट्रीटमेंट के मामलों में कन्वेंशनल मेथड्स यानी पारंपरिक तरीकों के साथ जैसे कि कीमोथेरेपी. द केमोथेरेपी मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस बाय द यूज ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस, स्पेशली द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर बाय द साइटोटॉक्सिक एंड द अदर ड्रग्स. तो कीमोथेरेपी क्या होता है कि ये रोग का मतलब उपचार होता है रासायनिक पदार्थ के माध्यम से और स्पेशली कैंसर का साइटोटॉक्सिक और अन्य दवाइयों की मदद से. एंड द रेडिएशन थेरेपी मीन्स रेडिएशन थेरेपी इज अ टाइप ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट. तो रेडिएशन थेरेपी जो होता है ये एक प्रकार का कैंसर का ट्रीटमेंट यानी कैंसर का उपचार होता है. एंड द सर्जरी और जो मतलब मॉडर्न टेक्निक्स जैसे कि आधुनिक तकनीकें जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और मतलब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी, इसका भी पालन किया जाता है. सो आवर फुल दैट इज द कैंसर टॉपिक इट इज गेट कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी अबाउट आवर सेकेंड वन टॉपिक दैट इज द डायबिटीज. तो अभी हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे जो कि है डायबिटीज. द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन द पैनक्रियास helps to control the level of sugar glucose in the blood, and if this insulin is secreted into the low quantity, the glucose level cannot be controlled, and such disorders are called as the diabetes. तो हार्मोन इंसुलिन जो होता है ये हमारे अग्न्याशय में निर्माण होता है जो कि हमारे खून में, रक्त में जो शुगर शर्करा की मात्रा है उसे नियंत्रित करती है. और अगर ये जो इंसुलिन होती है इसे हम कम मात्रा में स्रावित कर देते हैं तो हम जो शर्करा की मात्रा है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते और ऐसे विकार को कहा जाता है डायबिटीज. एंड द सिम्टम्स विच कैनॉट बी इग्नोर्ड, यानी ऐसे लक्षण जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. फर्स्ट one is frequent urination at night and increased obesity and
वेट लॉस। तो सबसे पहला है कि हमको मतलब रात में लगातार पेशाब आना, दूसरा वाला हमारा जो मोटापा है वो बढ़ जाना या वज़न घट जाना। एंड द रीजंस ऑफ द डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ के कारण कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द हेरिडिटी, सेकेंड वन इज़ द ओबेसिटी, थर्ड वन इज़ द लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड फोर्थ वन इज़ द मेंटल स्ट्रेस। तो डायबिटीज़ के कारण ऐसे हो सकते हैं, सबसे पहला है वंशागति के द्वारा, दूसरा वाला है मोटापा के द्वारा, जो शारीरिक व्यायाम है उसमें कमी के द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक तनाव लेने के द्वारा डायबिटीज़ हो सकता है। एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स यानी निवारक उपाय कैसे हो सकते हैं। फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, मेडिसिन्स एंड द एक्सरसाइज अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर हेल्प्स टू कीप द डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल। तो उसके निवारक उपाय ऐसे हो सकते हैं, यानी सही भोजन जो है उसका पालन करना, दवाइयाँ लेना, और जो एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना, जो डॉक्टर है उसे उसके विशेषज्ञ के देखरेख के अंदर एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना, ये हमको मदद करता है कैंसर को डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए। And the India has the largest numbers of the diabetes patient in the world. At the present, approximately 7 crore of the diabetes patient are present in our country. तो भारत के पास पूरी दुनिया में से ज़्यादा डायबिटीज़ मरीज़ है, और अभी के वर्तमान समय में लगभग 7 करोड़ डायबिटीज़ पेशेंट प्रेजेंट है अभी भारत में, हमारे देश में। So our topic, that is the diabetes, it is also get completed. Our one more topic that remaining, that is the heart disease, that we shall learn in our third part. So our fourth one point that yet it is not get completed, that is non-infectious diseases. So but our second part is get completed of the chapter health and the diseases. In it we have learned about the AIDS. The full form of the AIDS is the acquired immunodeficiency syndrome. The AIDS is caused by the HIV, means human immunodeficiency virus, and we have seen that the HIV was first reported in the African species of the monkeys, and we have seen about the 4 types of the question answers. Then we have seen about our third one point, that is the infections through animals, यानी जानवरों के द्वारा संक्रमण. In it we have seen about one topic, that is the rabies. The rabies is the viral diseases. It occurs due to the bite of the infected dog, cat, rabbit and monkey, and the symptoms of the dog bite occurs within the 90 to 175 days. And we have seen about the symptoms of the rabies also. Then we have seen about our fourth one point, that is the non-infectious diseases. Before that we have seen about one question. So in the non-infectious diseases we have seen about the diseases which does not occur through the infections and body contacts is called as the non-infectious diseases. And in it we have seen about the first topic, that is the cancer. We have seen that the uncontrolled and abnormal cell growth is called as the cancer, and the group and the lump of the cancerous cells is called as the malignant tumor. Then we have seen about the symptoms of the cancer. We have seen about the reasons of the cancer as well. Then we have seen about the second one topic, that is the diabetes. In the diabetes we have seen that the hormone insulin produced in the pancreas helps to control the level of sugar glucose in the blood, and if this insulin is secreted into the low quantity, the glucose level cannot be controlled. Such disorders are called as the diabetes. And in the cancer we have seen about the modern diagnostics and the treatment of the cancer. We have seen about in it the various techniques like the CT scan, MRI scan, mammography and biopsy is used for the diagnosis of the cancer. And we have also seen about this CT scan, MRI scan full form. We have seen in it in the information. And then we have seen about our diabetes topic is also get completed, and we have seen that the India has the largest numbers of the diabetes patient in the world. But our fourth one point, non-infectious diseases, it is not get completed. The one more topic is remaining in it is the heart disease. So our second part of the chapter health and diseases, it is get completed. Jai Hind.